Hello students, welcome to my channel. Class 11th Dimensional Analysis. What is dimension? Dimension होता क्या है? Dimension of a physical quantity are the powers which are placed on fundamental units for obtaining the derived unit of that quantity. यानी जो डायमेंशन है एक्चुअल में क्या है? It is a physical quantity are the powers which are placed on fundamental unit. यानी अगर हम इसे MLT के फॉर्म में जब लिखेंगे तो MLT के ऊपर जो पावर रेज करते हैं यही पावर जो है इसकी डायमेंशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. Derived unit of force equals to unit of mass into unit of acceleration. Unit of mass is kilogram, unit of acceleration meter per second square, and kilogram m meter l second t. So m1 l1 t minus 2 means this equation यानी force has dimension 1 in mass, 1 in length and minus 2 in time. Similarly, work done equals to force into displacement. Then derived unit of work done equals to unit of force into unit of displacement equals to Newton into meter. Newton will be break in kilogram into meter per second square. Then it comes out to m1 l2 t minus 2. Dimensional equation. What is dimensional equation? An equation obtained by equating a physical quantity to its dimensional formula is known as dimensional equation, that physical quantity. Dimensional equation of force. Force equals to m1 l1 t minus 2. यानी यहाँ पर हम mlt के पावर के रूप में जो लिखते हैं इसे हम पूरे को एक बिग ब्रैकेट में रखते हैं. डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डेंसिटी m1 l minus 3 t 0. डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ टार्क m1 l2 t minus 2. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन. फर्स्ट, डायमेंशनल variable, dimensional constant, dimensionless variable and dimensionless constant. Means physical quantities are categorized in 4 ways. Dimensional variable, those physical quantities whose values or magnitude are variable but they possess dimensions. यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड वेरी करेगा और उसकी डायमेंशन होगी. फॉर एग्जांपल, फोर्स, वेलोसिटी, टार्क, एनर्जी, वर्क डन एटसेट्रा. ए फोर्स ऑन ए फुटबॉल बाय डिफरेंट प्लेयर्स लाइक 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 18 न्यूटन एटसेट्रा. अगर ये किसी फुटबॉल खेलते समय बच्चे जो फोर्स लगा रहे हैं, किसी ने लगाया 10 न्यूटन, किसी ने 15 न्यूटन, किसी ने 18 न्यूटन, तो यूनिट तो सेम है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है. मीन्स ये हो गया डायमेंशनल वेरिएबल. वेलोसिटी ऑफ कार 80 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ ए ट्रक 55 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटर 45 किलोमीटर पर आवर. देन मैग्नीट्यूड आर वेरिंग हियर बट यूनिट्स आर सेम. Dimensional constant, those physical quantities whose values are constant and they possess dimensions. यानी इसमें डायमेंशन होगी लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होगी. फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. प्लैंक्स कांस्टेंट H equals to 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड.
Rydberg constant R equals to 1.0973 10 power 7 meter inverse. Permittivity of free space or electric constant epsilon naught 8.85 into 10 power minus 12 meter minus 3 kg minus 1 second और 4 एंड एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है और इसमें यूनिट है, मीन्स हो गया डायमेंशन भी है और वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसलिए हो गया ये डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनलेस वेरिएबल, those physical quantities whose values are variable but they possess no dimension. For example, strain, solid angle, relative density, refractive index, dispersive power, etc. For example, strain equals to change in dimension upon original dimension. Solid angle equals to delta A cos theta upon r square. Angle arc upon radius. Relative density, density of substance divided by density of water at 4 degrees centigrade. Refractive index, velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium. Then we see here the ratio of same physical quantities having dimensionless variable. Dispersive power Nv minus Nr upon Ny minus 1, where N is refractive index, V for violet color, R red color and Y yellow color. Dimensionless constant, those physical quantities whose values are constant and they possess no dimension. Value constant होगी और dimension नहीं होगी. For example, natural number 1, 2, 3, 4, 5 etc. Mathematical constant pi, exponential e etc. Usage of dimensions. There are 3 uses. First use is conversion of units from one system to another system. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना. If U1 and U2 are units of any physical quantity in both different systems of unit, N1 and N2 are their numerical values respectively, then Q equals to N1 U1 equals to N2 U2. If the dimensional formula for the physical quantity is M, A, L, B, T, C, then in first system unit will be U1 equals to M1 A, L1 B, T1 C, and U2 M2 A, L2 B, T2 C. From this equation, N1 U1 equals to N2 U2. Then N1 M1 A, L1 B, T1 C equals to N2 M2 A, L2 B, T2 C. Therefore N2 यानी N2 को फाइंड करना है तो N2 इक्वल्स टू होगा N1 अपान, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड हो जाएगा तो आप इसको लिख लेंगे N2 इक्वल्स टू N1 अपान M2A, L1 अपान L2B, T1 अपान T2C. अब जिस यूनिट को चेंज करना होगा, फर्स्ट जो है ये मास लेंथ टाइम यूनिट रखेंगे और सेकंड में जिसमें पूछा गया चेंज करने के लिए उसमें ये मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट और टाइम की यूनिट रख करके इसको सॉल्व करेंगे. सेकेंड यूज है टू चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. कोई इक्वेशन दिया गया है तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हाउ कैन वी चेक दैट इक्वेशन इज करेक्ट आर नॉट. एनी गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट इफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन है सेम डायमेंशनल फार्मूला. अगर किसी इक्वेशन में दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूला सेम आ जाते हैं तो इसको डायमेंशनली करेक्ट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, mass energy equivalence relation E equals to mc square, where E is energy, M mass and C velocity of light in vacuum. चलिए अब इसको चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं. तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड E एनर्जी का होता है ml2 t minus 2. डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड M into C square, M मास और
c स्क्वायर, c स्टैंड वेलोसिटी, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस 1 और इसका स्क्वायर, तो ml2t माइनस 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, देयरफॉर वी मे से E equals to mc square is dimensionally correct. Third, deducing relation among the physical quantities. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस फाइंड करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। द एनर्जी E of oscillating pendulum depends upon its mass m, frequency n and amplitude of oscillation A. Find the expression for energy using dimensional analysis. तो पहले आपको इसमें फाइंड क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है E के लिए। तो सपोज कर लेते हैं कि E प्रोपोर्शनल मास और इसकी डायमेंशन x है, फ्रीक्वेंसी n, इसकी डायमेंशन y है और A इसकी डायमेंशन z, ये सपोज कर लेते हैं। then E equals to k m x n y and a z। अब दोनों तरफ की डायमेंशन लिखेंगे, राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो E एनर्जी है m1 l2 t माइनस 2, k कांस्टेंट है, m मास, m का x हो गया, n फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज या पर सेकेंड, तो पर सेकेंड मीन्स हो गया t माइनस 1 और इसका हो गया पावर y, ए जेड एम्पलीट्यूड है एल जेड। अब यहाँ पर इसको जो है रीअरेंज कर लेंगे, तो m1 l2 t माइनस 2 लेफ्ट साइड, राइट साइड हो गया mx और l जेड t पर माइनस 1 इंटू वाई। अब यहाँ पे सेकेंड यूज में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब कि जब ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसके जो इंडेक्स होंगे वो सेम होंगे, तो कंपेयरिंग इंडेक्स, तो m1 है mx है तो x इक्वल्स टू 1, l2 lz, z इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, माइनस 2 t का है और माइनस y इक्वल टू माइनस 2, यानी माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 2। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 1, इस फर्स्ट इक्वेशन में अब इसको कर देते हैं। तो E इक्वल्स टू k m1 n पर 2 हो गया, a पर 2 हो गया। अब इसको लिख लेंगे E इक्वल्स टू k m n स्क्वायर a स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है तभी किया जा सकता है जब वह सेम काइंड के हो। दैट इज इफ एनी इक्वेशन हैज टू और मोर टर्म यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म विल बी सेम। फॉर एग्जांपल, इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, u प्लस at, तो u को at में हम तभी ऐड कर सकते हैं व्हेन डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ at, यानी यहाँ पर हो गया कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ at। वैन डर वाल गैस इक्वेशन, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इक्वल्स टू rt। अब यहाँ पर क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ p इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कुछ लिमिटेशंस हैं। द वैल्यू ऑफ एनी डायमेंशनल कांस्टेंट प्रेजेंट इन द फार्मूला कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन दैट द गिवन क्वांटिटी इज ए स्केलर और वेक्टर। If physical quantity depends upon more than 3 factors, then relative relation among them cannot be established. This method does not work if a physical quantity depends upon trigonometric, exponential and logarithmic function. If dimensional formula is given, then we cannot say that for which quantity it has been given. If a physical quantity depends on the 3 physical quantity out of
which of quantities have same dimension, then we cannot establish relation among them. इसका मतलब है कि ये इसकी जो लिमिटेशंस है, इस लिमिटेशंस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा इसको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे।